Now, in this part of the lecture, we will discuss the characteristics of the transition curve. Okay. See, as in the previous class, we have discussed that, for example, if we have one line of communication, okay, suppose it is starting at point A, and at this point, let we have another line of communication. So this will be called the main deflection angle, and this is the main point of intersection. Okay, so to move gradually from one line of communication and to another line of communication, we are interested to design a simple circular curve. Then we have discussed that here we have again some abrupt changes in super elevation, radial acceleration, in curvature and radius. So then we are interested to design a transition curve before the simple circular curve, mean a curve of variable radius. And then we will design or required simple circular curve, and then again we will have the transition curve, so that we may more gradually, smoothly, and comfortably move from the straight line into the curvature, and from a curvature into a straight line. So T is the starting point of the transition curve, and E is the junction point of the transition curve and circular curve, and E dash is the another junction point between the circular curve and transition curve. And suppose T dash is the end of the transition curve. So now this curve will consist of two transition curve and one simple curve. So then this curve is called combined curve, or it is called composite curve. Okay. So first we will have a transition curve, then we will have the circular curve, and then we will have the transition curve. And see, if we are going to introduce, or if we are going to design a transition curve along with the circular curve, then the main circular curve will be shifted into this new position, and the distance through which we are shifting the main circular curve into another new position, that is called the shift of the transition curve. Okay. Now, before the characteristics of transition curve, as we have discussed the setting out methods for the transition curve. So we have two methods. Either the transition curve will be set out by the offsets from the tangents, okay, which are also called the rectangular coordinates, or which are also called the Cartesian coordinate, in which x is equal to L and y is equal to, as we have derived that, L cube divided by 6RL. Okay, yeah, y is equal to x cube divided by 6RL. So the transition curve which we obtained through this equation, that is called the cubic parabola. Yeah, that is called the fruit transition curve or the Eastman transition curve. And second one, as we have discussed in the previous part of this lecture, that if we assume the first two terms in that derivation, so then we will get that x is equal to L into 1 minus L to the power 4 and 40 R square L square. Okay, and y will be equal to L cube divided by 6RL into 1 minus L power 4 divided by 56 R square L square. Okay, so then the curve which is obtained through these coordinates, that is called the clothoidal curve. Yeah, that is called the true curve. Okay, and in detail we have discussed in the previous part of this lecture. And then the third method, we have the deflection angles, in which the alpha, yeah, the deflection angle to any point from the main tangent along the transition curve is equal to
573 573 L square divide by 573 L square divide by क्या था यार, RL. Okay, so that is the deflection angle to any point on the transition curve from the main tangent, and the deflection angle to the last point, which is the junction point. Mean if the junction point is directly joined into the to the tangent point, so इसका जो deflection angle होता है, that is equal to 573 L divide by R. Okay, ये values जो होते हैं ये minutes में होते हैं. So, in the first part of this lecture, we have come up with these conclusions. Now, in this lecture, we will discuss the different characteristics of the transition curve. Okay. So, see, again, just focus on the step-by-step construction of the diagram. तो फिर इसकी जो इक्वेशंस होते हैं वो इजी होते हैं, उसमें इतनी डिफिकल्टीज नहीं होते, लेकिन आप लोग जो है उसकी स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन पे फोकस करें. ठीक है. सी सपोज दिस इज द line of communication. Okay, this is the starting point. I mean, this is the A point from which we have started our project, either it is road or railway or canal or pipeline. This B is the point through which we have to change our direction. So this BC will be our another line of communication. Okay, and this will be the main deflection angle. Your B is the point of intersection. Okay, now we are interested to design a transition curve along with the simple circular curve. So see, suppose the transition curve will be started from this point, which is point T. यहां से ट्रांजिशन करो फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, यहां तक ट्रांजिशन करो सपोज आएगा, लेट दैट इज पॉइंट ई. पॉइंट ई इज द जंक्शन पॉइंट. फॉर एग्जांपल इसके बाद सर्कुलर करो स्टार्ट होगा. ठीक है, सपोज ई डैश तक, यहां तक सर्कुलर करो होगा. ठीक है, इसके बाद जो है फिर दूसरा ट्रांजिशन करो होगा. ठीक है, लास्ट जो टेंजेंट के साथ ज्वाइन होगा, सपोज टी डैश जो है वो लास्ट टेंजेंट पॉइंट है. ठीक है, अब देखें ये ई और ई डैश यहां तक जो रेडियस है ये कांस्टेंट होगा. सपोज दैट इज द ओरिजिन पॉइंट और ये जो रेडियस है दैट इज आर. और टी से ई तक ये रेडियस जो है ये डिक्रीज होगा फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, मीन फ्रॉम इनफाइनाइट टू सम वैल्यू. ठीक है, नाउ सी, अगर ये जो जंक्शन पॉइंट है इससे इसको अगर मैं एक परपेंडिकुलर अपसेट ड्रॉ कर दूं, so that will be the y coordinate of the junction point. That will be the y coordinate of the junction point. So for example, this is point E1. ठीक है, E1 से T तक ये क्या होगा जी, E1T ये क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द जंक्शन पॉइंट. ठीक है, अब अगर E पॉइंट पे सपोज मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं. ठीक है, E पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, सो इट विल बी अ टेंजेंट टू द ट्रांजिशन करो and also it will be the tangent to the circular curve, mean it is a tangent at the junction point. तो ये एंगल क्या होगा जी, इसको हम क्या कहते हैं, पाई 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, and that is called the spiral angle, mean the angle between the main tangent and the tangent at a point E. मीन जंक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट है ना उसके और मेन टेंजेंट के दरमियान जो एंगल है दैट इज पाई 1. एंड सपोज दिस पॉइंट इज E2. सपोज अगर इस पॉइंट को हम E2 कहते हैं.
ठीक है। अब देखिए इससे आगे जो है फोकस करें इसके ऊपर। सी, अगर ये जो सर्कुलर करो है ना, अगर ये इस साइड पे मैं एक्सटेंड कर दूं, इफ आई एक्सटेंड या इफ आई प्रीसीड द सिंपल सर्कुलर करो इनटू दिस साइड, तो ये इस तरह आएगा ना, बिकॉज इसका रेडियस तो कांस्टेंट है और ट्रांजिशन करो का रेडियस इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है, तो मीन सिंपल सर्कुलर करो जो है ये इन साइड पे आएगा। ठीक है। अच्छा, इसको मैं कितना एक्सटेंड कर रहा हूं, सी, अगर इस ओरिजिन से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं और ये एक्सटेंडेड सर्कुलर करो का जो ये पॉइंट है ना, अगर यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो और ये रेडियस उसको परपेंडिकुलर हो, ये जो सर्कुलर करो मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, अगर इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये जो रेडियल लाइन है ये उस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। ठीक है। नाउ एक्सटेंड दिस रेडियल लाइन अप टू द टेंजेंट। सो सपोज ये पॉइंट जो है दैट इज पॉइंट T1, और जहां पे ये ट्रांजिशन करो को इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज दिस इज पॉइंट N, और ये जो पॉइंट है ये जहां तक हमने सर्कुलर करो को एक्सटेंड किया हुआ है, दिस इज पॉइंट E डैश। ठीक है। तो अब देखें ये जो टेंजेंट और एक्सटेंडेड करो के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना, दैट इज कॉल्ड द शिफ्ट, जिस तरह हम प्रीवियस स्लाइड्स में हमने डिस्कस की ना। देखें, अगर आपके पास एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, दूसरा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर सिंपली आप एक सर्कुलर करो डिजाइन करते तो ये होगा, लेकिन अगर इसके साथ आप ट्रांजिशन करो इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्रांजिशन करो डिजाइन करते हैं, तो फिर ट्रांजिशन करो यहां पे आप किस तरह इंटर करेंगे, तो ट्रांजिशन करो फिर हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हमारे पास जो है सर्कुलर करो होता है, और उसके बाद फिर दूसरा ट्रांजिशन करो होता है। सो इफ यू आर गोइंग टू डिजाइन अ ट्रांजिशन करो along with the simple circular curve, then the simple circular curve will be shifted through some distance, which is called the shift. So here the distance from the tangent line to this exceeded circular curve, this is called the shift, या ये shift distance होते हैं, या इसको जो है shift length भी कहते हैं। ठीक है। सो ये कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया जी। सर रिपीट कर ले यस सर। एक बार। अच्छा, देखें वन बाय वन पैरामीटर को देखें। ए बी जो है ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, डायग्राम को देखते जाएं। बी सी जो है ये हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। टी बी ये जो है ये हमारे पास ओरिजिनल टेंजेंट है, ओरिजिनल टेंजेंट। टी पॉइंट क्या है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन करो, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन करो। ई क्या है, दैट इज द एंड ऑफ ट्रांजिशन करो एंड स्टार्ट ऑफ सर्कुलर करो, मीन ये जंक्शन पॉइंट है। ठीक है। फिर E1 ये क्या है, दैट इज द वर्टिकल कोऑर्डिनेट ऑफ द जंक्शन पॉइंट। ठीक है। TE1 क्या है, दैट इज इक्वल टू x एंड इट इज द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ऑफ द जंक्शन पॉइंट। ठीक है। अच्छा, EE2 क्या है, EE2 दैट इज द टेंजेंट एट द जंक्शन पॉइंट, ये रेड लाइन जो है ना EE2, that is the tangent at the junction point and it will be tangent to both the transition करो and circular करो। ठीक है। फिर ई डैश क्या है, ये ई डैश लाइन जो है, ये ब्लैक डैश्ड लाइन जो है, that is the extended
या एक्सीडेड या रिडंडेंट सर्कुलर करो। मीन अगर सर्कुलर करो को हम इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लें, सो ई डैश हुई है। ठीक है। अच्छा, ई डैश पॉइंट क्या है? ये देखिए, अगर इस ई डैश पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये इस रेडियल लाइन को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये ई डैश कितना होगा। सो ई डैश जो है, ये आप इतना आ जाएं कि आपके पास ये एंगल जो है ये पाई वन के बराबर हो, ये एंगल पाई वन के बराबर हो। ठीक है। अच्छा, इन क्या है? इन पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस ओ ई डैश एक्सटेंडेड लाइन ऑन ट्रांजिशन करो। मीन अगर ओ ई डैश को हम एक्सटेंड कर लें ना, तो ये ट्रांजिशन करो को इन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। एस क्या है? दैट इज द शिफ्ट एंड इट इज इक्वल टू टी वन ई डैश। ये टी वन ई डैश के बराबर होगा एंड दैट इज कॉल्ड द शिफ्ट ऑफ द सर्कुलर करो। एज वी हैव डिस्कस्ड कि अगर आप ट्रांजिशन करो डिजाइन करना चाहते हैं along with the सर्कुलर करो, सो सर्कुलर करो को आपने शिफ्ट करना होगा। ठीक है, न्यू पोजीशन पे। सो दैट इज द शिफ्ट ऑफ द सर्कुलर करो। पाई वन क्या है? ये स्पाइरल एंगल इसको हम कहते हैं, और ये किसके बराबर होते हैं? पाई वन जो है ये बराबर होता है एल बाई टू आर के। ठीक है, प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में हमने इसको डिराइव किया हुआ है, एल डिवाइड बाई टू आर एंड दैट इज द स्पाइरल एंगल। मीन अगर जंक्शन पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो मेन टेंजेंट के साथ इसका कितना एंगल होगा। आर है जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर करो है, और एल जो है ये ट्रांजिशन करो का लेंथ होगा। ठीक है। और डेल्टा जो है ये मेन डिफ्लेक्शन एंगल है। इज इट क्लियर नाउ? जी। Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखें करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांजिशंस करो के हमारे पास ये जो ई डैश है ये किसके बराबर होगा? मीन दैट इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। सो ई डैश विल बी इक्वल टू आर पाई वन। ओके, या दिस विल बी इक्वल टू आर पाई वन जो है हमारे पास बराबर है एल डिवाइड बाई टू आर के। सो ई डैश इज इक्वल टू एल बाई टू। ठीक है, ई डैश मतलब ये है कि अगर ई से अगर आप सर्कुलर करो को एक्सीड कर लें, प्रोसीड कर लें, कितने एंगल पे? एट एन एंगल इक्वल टू पाई वन, तो ये ई डैश ये क्या होगा? ये हाफ ऑफ द ट्रांजिशन लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, ट्रांजिशन करो का जो लेंथ है ना ये उसके बराबर होगा। ठीक है। सो देखिए ई डैश जो है ये अप्रोक्सीमेटली ई एन के बराबर है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मीन यहाँ पे जो सर्कुलर करो पे जो लेंथ होता है और ट्रांजिशन करो पे जो डिस्टेंस होता है ये अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। सो दैट विल बी एल बाई टू। ठीक है। सो ये जो दूसरा साइड होगा, अगर ये ई एन जो है ये हाफ के बराबर है ना, तो ये टी एन कितना होगा? जी, टी एन कितना होगा? मीन अगर एन से जंक्शन पॉइंट तक ये हाफ ऑफ द लेंथ के बराबर है, तो एन से स्टार्टिंग पॉइंट तक ये कितना होगा? ये भी हाफ होगा ना, हाफ उस साइड पे होगा एन से और हाफ इस साइड पे होगा। तो अब देखें ये ई डैश टी वन क्या है? ये जंक्शन सॉरी ये शिफ्ट के बराबर है। तो शिफ्ट क्या करते हैं? ट्रांजिशन करो को बाइसेक्ट करता है। समझ आ रहे हैं ना? मीन अगर ई डैश
और T1 को आप ज्वाइन कर लें, सो दैट इज कॉल्ड द शेफ्ट ऑफ द सर्कुलर करो। तो ये ट्रांजिशन करो को कहां पे टच कर रहा है? मिड पॉइंट पे। तो इसका कंक्लूजन ये है कि शिफ्ट ई डैश T1 बाइसेक्टिंग द ट्रांजिशन करो एट इन पॉइंट। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। Yes, जी sir. सर। अच्छा, अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास ये जो शिफ्ट होता है ये कितना होगा। मीन अगर आप एक सर्कुलर करो के साथ ट्रांजिशन करो डिजाइन करना चाहते हैं तो सर्कुलर करो को आपने कितना शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो देखें ये एस जो है दैट इज इक्वल टू ई डैश T1। ठीक है, कि सर्कुलर करो को आपने टेंजेंट से कितना शिफ्ट करना होगा। या अगर यहां पे आप एक सर्कुलर करो सिर्फ डिजाइन करते तो सपोज वो यहां पे आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल T1 और T2 के दरमियान आ रहे, लेकिन अगर आपने ट्रांजिशन करो इंट्रोड्यूस करने हैं तो ये सर्कुलर करो यहां पे आ जाएगा। इतना आपने इसको शिफ्ट करना होगा, और ये शिफ्ट जो है ये इस ई डैश T1 के बराबर है। ठीक है, ई डैश T1 मतलब यह है कि अगर हम सर्कुलर करो को इस तरह एक्सटेंड कर लें ना, एक्सीड कर लें, ये जो डैश लाइन है कितने एंगल पे? पाई 1 पे, और इसका रेडियल लाइन आप ड्रॉ कर लें तो ई डैश से T1 तक ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द शिफ्ट ऑफ द सर्कुलर करो। सो शिफ्ट इज इक्वल टू ई डैश T1। अब देखें ये ई डैश क्या है? ये एक अर्क है ना, इस तरह एक सर्कुलर पाथ है। अब अगर ई से इस तरह मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं कि ये इस रेडियल लाइन को परपेंडिकुलर हो, ये जी पॉइंट या ई जी लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, विच इज परपेंडिकुलर टू ओ ई डैश एट जी पॉइंट। ठीक है, तो अब देखें ये एस इज इक्वल टू ई डैश T1, ये किसके बराबर होगा? सी GT1 माइनस, देखें GT1 माइनस GE डैश। क्लियर? इसके समझ आ गई? ये शिफ्ट जो है ना ई डैश T1 ये किसके बराबर होगा? GT1 माइनस GE डैश। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब देखें ये GT1 जो है ये बराबर है किसके? E1 के, बिकॉज EG और E1 T1, ये जो ब्लैक लाइन है E1 T1 और ये रेड लाइन EG, ये दोनों पैरेलल हैं और सेम लेंथ के हैं। तो GT1 और E1 ये सेम होंगे। तो S इज इक्वल टू E1 माइनस GE डैश। ठीक है, अब देखें E1 किसके बराबर है? E1 क्या है? दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द जंक्शन पॉइंट माइनस, अब देखें इस चीज को GE डैश को, सी अगर ये ट्राइंगल हम एज्यूम कर लें OENG, तो इस ट्राइंगल में cos पाई 1 ये किसके बराबर होगा? जी, cos पाई 1 क्या होगा? OG मीन बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सो OG डिवाइड बाय R, या OG इज इक्वल टू R cos पाई 1। ठीक है, अब देखें ये OG किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू OE डैश
माइनस जी ई डैश, इस तरह है ना। ओ जी किसके बराबर होगा? ओ ई डैश माइनस जी ई डैश, तो आपके पास ओ जी आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू आर कास पाई 1। ठीक है, अब देखें ओ ई डैश किसके बराबर है? ओ ई डैश ये रेडियस के बराबर होगा, माइनस जी ई डैश इज इक्वल टू कास पाई 1, आर कास पाई 1। ठीक है, तो जी ई डैश क्या आ जाएगा? जी ई डैश विल बी इक्वल टू आर माइनस आर कास पाई 1। तो यहां पे लिखें जी ई डैश इज इक्वल टू आर 1 माइनस कास पाई 1। यहां तक क्लियर हो गया जी? Yes, sir. अच्छा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं। सो शिफ्ट इज इक्वल टू वाई, y mean that is the vertical component of the junction point minus r into 1 minus cos pi 1। ठीक है, मीन शिफ्ट इज इक्वल टू ई ई 1 माइनस जी ई डैश। अच्छा, अब देखिए इस इक्वेशन को, यहां पे देखें s इज इक्वल टू वाई माइनस आर इंटू 1 माइनस cos पाई 1। ठीक है, पैराबोलिक करो में हमारे पास क्या होता है? एक्स एल के बराबर होता है और y क्या होता है? that is equal to L cube divided by 6RL। तो जंक्शन पॉइंट का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? L क्यूब डिवाइड बाय 6RL, और y इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइड बाय 6R। ठीक है, मीन लास्ट जो जंक्शन पॉइंट है ना, उसका y कंपोनेंट किसके बराबर होता है ना? L स्क्वायर डिवाइड बाय 6R। तो यहां पे पुट कर लें s इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइड बाय 6R माइनस, अब देखें हमारे पास जो एक टेग्नोमेट्रिक रेशो है, टेग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप है, विच इज कॉल्ड दी हाफ एंगल फार्मूला। इसमें हमारे पास क्या होते हैं? 1 माइनस कास थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह एक इक्वेशन है हमारे पास या रिलेशनशिप है, विच इज कॉल्ड दी हाफ एंगल फार्मूला। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर लें, r इंटू 2 साइन स्क्वायर पाई 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब जस्ट मैथमेटिकल उसकी है सिंप्लीफिकेशन है। सो s इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइड बाई 6R माइनस R इनटू, अब देखें ये जो पाई 1 एंगल है ये बहुत स्मॉल एंगल है हमारे पास। अगर इसको आप 2 पे डिवाइड कर ले फिर इसका स्क्वायर ले ले तो बहुत स्मॉल हो जाता है। सो देन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल दैट वी आर एज्यूमिंग दैट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू पाई 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई 1 बाई 2 जो है ये पाई 1 बाई 2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। नाउ s इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइड बाई 6R माइनस ये क्या होगा? 2R पाई 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, L स्क्वायर डिवाइड बाई 6R माइनस R पाई 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे हमारे पास 2 आ जाएगा। नाउ s इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइड बाई 6R माइनस R डिवाइड बाई 2। पाई 1 किसके बराबर होता है?
we know that pi 1 is equal to L डिवाइड बाई 2R, तो pi 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर डिवाइड बाय 4R स्क्वायर हो जाएगा ना, या इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो L स्क्वायर डिवाइड बाय 6R माइनस L स्क्वायर डिवाइड बाय 8R हो जाएगा, ये ना, एक R इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो L स्क्वायर डिवाइड बाय 6R माइनस L स्क्वायर डिवाइड बाय 8R, that is equal to L स्क्वायर डिवाइड बाय 24R। मीन अगर इसका आप LCM ले ले और इसको सिंप्लीफाई कर ले, सो शिफ्ट इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइड बाय 24R। मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सर्कुलर करो है R रेडियस का, और इसके साथ आपने L लेंथ का ट्रांजिशन करो डिजाइन करना है, तो इस करो को कितना शिफ्ट करना होगा, that will be equal to L square divided by 24R. Is it clear? Yes, sir. अच्छा, नाउ यहां पे देखें, हमारे पास ये जो NT1 है, NT1 एक्चुअली ये N तक ये उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है ना, तो ये क्या होगा, ये कोई बता सकते हैं कि NT1 that will be equal to, देखिए ना y क्या होता है हमारे पास, L क्यूब डिवाइड बाई 6RL, तो ये NT1 क्या होगा जी, TN क्यूब इन इसका डिस्टेंस फ्रॉम T, तो इसका डिस्टेंस ये है ना, TN है, TN क्यूब डिवाइड बाई 6RL। देखिए y हमारे पास क्या होते हैं, लेंथ ऑन द कर्व फ्रॉम द टेंजेंट पॉइंट क्यूब डिवाइड बाई 6RL, तो ये जो T1n है ना, that will be equal to TN क्यूब डिवाइड बाई 6RL। TN किसके बराबर है, L/2 के बराबर है ना, यानी ये कितना डिस्टेंस है, हाफ ऑफ द ट्रांजिशन करो लेंथ है, सो L/2 क्यूब डिवाइड बाई 6RL, L/2 क्यूब डिवाइड बाई 6RL। सो देखिए इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे ना, NT1, सो इट विल बी इक्वल टू, मीन इससे क्या आ जाएगा, L क्यूब डिवाइड बाई 8, फिर L क्यूब से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L स्क्वायर डिवाइड बाई 8 और 6 48R रह जाएगा ना, L स्क्वायर डिवाइड बाई 48R, मीन ये जो TN है that is equal to L स्क्वायर डिवाइड बाई 48R। अच्छा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, 1/2 L स्क्वायर डिवाइड बाई 24R, तो ये L स्क्वायर डिवाइड बाई 24R किसके बराबर है, शिफ्ट के, Yes. Yes. so this distance is equal to, या we can say that T1n is equal to S/2। तो ये ट्रांजिशन करो का दूसरा करेक्टरिस्टिक है कि ट्रांजिशन करो जो है ये शिफ्ट को बाइसेक्ट करता है। देखिए ये E'(T1) क्या है, ये शिफ्ट है ना, तो पहला करेक्टरिस्टिक हमने ये डिराइव किया कि शिफ्ट करो को बाइसेक्ट करता है। दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है, करो शिफ्ट को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, मीन दोनों इंटरचेंजेबल है। अच्छा, so ये इक्वेशन जो है that is most important, that if you are going to introduce or design a transition करो along with the simple circular करो, so it will be shifted through this distance। ठीक है, अच्छा,
नाउ जो अनदर पैरामीटर है उसका ट्रांजिशन करो का, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द डिजाइनिंग, वो ये है कि देखिए जिस तरह हमारे पास एक दो लाइन के दरमियान अगर हम सिंपल करो डिजाइन करते हैं ना, तो इस करो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है T1 और ये एंड पॉइंट है B, ठीक है, और सपोज यहाँ पे हमारे पास जंक्शन पॉइंट है C, ये T2 पॉइंट है, तो ये BT जो होता है या ये जो टेंजेंट लेंथ होता है, ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू R टेंजेंट, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन एंगल है डेल्टा बाई 2, इसके बराबर होता है ना। नाउ सिमिलरली अगर हमारे पास एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, फिर दूसरा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, और यहां पे इफ यू आर डिजाइनिंग अ ट्रांजिशन करो, ठीक है, एंड सपोज देन वी हैव द सर्कुलर करो, देन वी हैव द ट्रांजिशन करो, सो व्हाट विल बी द टेंजेंट लेंथ, ठीक है, सपोज देखें ये टी जो है दैट इज द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिशन करो है, ई जो है ये एक जंक्शन पॉइंट है, ई डैश जो है ये दूसरा जंक्शन पॉइंट है, टी डैश जो है ये एंड ऑफ द ट्रांजिशन करो है, बी हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, डेल्टा जो है ये डिफ्लेक्शन एंगल है, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी होगा। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस बी टी, ठीक है, बी टी तक ये हमने फाइंड करना है। तो देखें अगर ई पे हम वही टेंजेंट ड्रॉ कर लेना, तो यहाँ पे ये एंगल जो है ये स्पाइरल एंगल होता है, ये इसको हम पाई 1 कहते हैं, और ये पॉइंट जो है सपोज दैट इज T1 पॉइंट, ठीक है। और अगर इस ई को हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें टेंजेंट से, सो ये इसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट होगा जिसको हम y कहते हैं, ठीक है, एंड सपोज दिस इज द पॉइंट E1, ठीक है, ये हमारे पास E1 पॉइंट है, सॉरी ये जो पॉइंट है दिस इज नॉट T1, फॉर एग्जांपल दिस इज E2, ठीक है, T1 एक और पॉइंट है, इसको हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए अगर ये सर्कुलर करो जो है इसको हम एक्सटेंड कर लें, कितना एक्सटेंड कर लें कि ये यहां पे पाई 1 एंगल बनाए, ये एंगल कितना हो पाई 1, तो अब इसको हम एक्सटेंड कर लें, तो टेंजेंट को जहां पे टच कर रहे हैं सपोज दैट इज T1, ये जो पॉइंट होता है इसको हम एन पॉइंट कहते हैं, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन करो एंड आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ द शिफ्ट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है ई डैश है, ठीक है। सिमिलरली अगर इस साइड पे ये सर्कुलर करो को हम एक्सीड कर ले, प्रोड्यूस्ड कर लें एट एन एंगल सिग्मा 1, ठीक है, और इसको फिर आप यहाँ पे इस तरह एक्सटेंड कर ले, तो ये आप आपके पास ये दूसरा T2 पॉइंट आ जाएगा, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे T1 है, ठीक है, ये जो पॉइंट आ जाएगा ये हमारे पास N2 पॉइंट आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे N पॉइंट है। इन सिमिलर कंस्ट्रक्शन आप इस साइड पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें रिमेंबर ये जो टोटल एंगल होता है ना, टोटल एंगल ये दो लाइंस के दरमियान ये डेल्टा के बराबर होता है, ये जो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल है, मेन डिफ्लेक्शन एंगल जो है, तो अब ये पाई 1 है और ये पाई 1 है, तो बीच में ये एंगल कितना होगा जी, डेल्टा माइनस डबल ऑफ पाई 1। डेल्टा माइनस 2 पाई 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये जो टोटल टेंजेंट लेंथ है बी टी दैट इज इक्वल टू BT1 प्लस T1T, ठीक है, BT1 प्लस T1T, देखें B से T1 तक फिर T1 से T तक, ये हमारे पास टोटल टेंजेंट लेंथ है, ठीक है, दैट इज द टोटल टेंजेंट लेंथ। अब देखें ये BT1 B से T1 तक ये कितना होगा,
कोई बता सकता है? बी से T1 तक ये कितना होगा? देखिए ये इसका, अगर ये टेंजेंट लेंथ आप ले लें, ये टोटल एंगल के लिए, तो देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू BT1 क्या होगा? देखिए BT माइनस T1B। नहीं नहीं, मीन उसको फॉर्मुलाइज करते हैं ना, जिस तरह हमारे पास एक सर्कुलर करो होता है ना, एक सर्कुलर करो है, तो ये उसका सपोज अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है करो का, ठीक है, और ये जंक्शन पॉइंट है, सही है, तो ये BT1 क्या होता है? दैट इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ दिस एंगल बाय 2। मीन ये क्या होता है? R टेंजेंट डेल्टा बाय 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? BT1 क्या होगा जी? दैट विल बी इक्वल टू OT1, जिस तरह वहां पे हमारे पास रेडियस है ना, OT1 टेंजेंट, ये टोटल एंगल कितना है? डेल्टा के बराबर होगा, डेल्टा बाय 2। तो OT1 क्या है? OT1 इज इक्वल टू रेडियस प्लस शिफ्ट। समझ आ रहे हैं? OT1 इज इक्वल टू R प्लस S टेंजेंट डेल्टा बाय 2, दैट इज BT1। क्लियर हो गया ये? इज इट Yes, क्लियर? sir. अच्छा, Yes, sir. अब जो आ, ये T1T किसके बराबर है? या क्या हम कर रहे थे यार, यहाँ पे BT इज इक्वल टू BT1 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? आप लोग भी नहीं कह रहे ना, ये T1T होगा, T1T होगा ना, B से T1 तक प्लस T1 से T तक, सो दैट विल बी द टोटल टेंजेंट लेंथ, BT1 प्लस T1T ये है, ठीक है। तो BT1 इसके बराबर हो गया। T1T क्या होगा? ये T1T जो है ये अप्रोक्सीमेटली TN के बराबर है, और TN क्या है? T1T इज इक्वल टू, देखिए हमने जो प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में डिस्कस किया था ना, x हमारे पास क्या था? x वाज इक्वल टू जी L। L। तो देखें अलोंग द करो ये TN है ना, TN कितना होता है? L/2 होता है, ठीक है। ये एक्चुअली ये L है ना, तो ये इस x के बराबर होगा पर पैराबोलिक करो। रिमेंबर हम ये जो भी कर रहे हैं ये हम पैराबोलिक करो के लिए, क्यूबिक पैराबोलिक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो T1T इज इक्वल टू TN एंड दैट इज इक्वल टू L/2। सो टोटल टेंजेंट लेंथ क्या होगा? अब R प्लस S मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट डेल्टा बाय 2 प्लस L/2, ये टोटल टेंजेंट लेंथ होगा व्हेनेवर यू आर डिजाइनिंग अ ट्रांजिशन करो, ठीक है। तो अगर आपने T का चेनेज फाइंड करना है तो ये कैलकुलेट कर लें, फिर B के चेनेज से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लें, सो यू विल गेट द चेनेज ऑफ T पॉइंट। T पॉइंट का चेनेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। R प्लस S टेंजेंट डेल्टा बाय 2 प्लस L/2। क्लियर हो गया ये? अच्छा, ये Yes, sir. हम कर रहे हैं दैट इज फॉर द क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। अगेन जो प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया हुआ है ना इस लेक्चर के, क्यूबिक पैराबोला आ जाते हैं आपके पास अगर x जो है L के बराबर हो और y जो है वो बराबर हो L³ डिवाइड बाई 6 के, तो क्यूबिक पैराबोला शेप होता है ट्रांजिशन करो का। अगर हम वो दूसरा इक्वेशन सेलेक्ट कर लें तो फिर हमारे स्क्लोटाइडल करो आ जाते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन लेंथ है ये क्यूबिक पैराबोलिक के लिए है, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन जो है, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कंपोजिट करो. नाउ वी हैव टू ट्रांजिशन पोर्शन और एक हमारे पास सर्कुलर है. तो इनका टोटल लेंथ कितना होगा? टोटल लेंथ ऑफ द कंपोजिट करो या टोटल लेंथ ऑफ द कंबाइंड करो? तो आप खुद बताएं. अभी देखिए, टीसीई तक एक ट्रांजिशन करो ये है ना, इसका लेंथ क्या होगा? एल. और ई डैश से टी डैश तक एक ट्रांजिशन करो ये है, इसका लेंथ क्या होगा? एल. और बीच में ये जो सर्कुलर करो है, इसका लेंथ क्या होगा? कोई बता सकता है जी? Sir, pi or ये- angle divided by 180. देखें, ये जो ई डैश है ना, दैट इज द अर्क, सो इट इज इक्वल टू आर थीटा. ठीक है. सो देखिए, आर थीटा क्या है? डेल्टा माइनस 2 पाई 1. तो ये रेडियन में आएगा, इसको पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या जाएगा? पाई आर डेल्टा माइनस 2 पाई 1 डिवाइड बाय 180. दैट विल बी द लेंथ ऑफ द सर्कुलर करो. ठीक है. अगर ट्रांजिशन के साथ आप सर्कुलर जो डिजाइन करते हैं ना, उसका लेंथ क्या होगा? पाई आर डेल्टा माइनस 2 पाई 1 डिवाइड बाय 180. Now what will be the total length of the combined करो या the total length of the transition करो will be equal to pi r delta minus 2 पाई 1 divide by 180 plus 2 time of the transition length, because एक लेंथ ये है और एक ये है, तो 2l ये हो जाएगा. So that will be the total length of the transition करो. ठीक है. Is it clear? Yes, sir. अच्छा. और इसमें ये जो पाई 1 है ना, ये क्या है? स्पाइरल एंगल है. ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है. दैट इज द एंगल बिटवीन द मेन टेंजेंट एंड द टेंजेंट एट द जंक्शन पॉइंट. ठीक है, पाई 1. और ये किसके बराबर होगा? ये जो है प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल टू L/2R के बराबर होता है. ठीक है. सो these are the different characteristics of the transition करो. ठीक है. Okay. Now in the previous class, in this lecture, we have discussed the introduction, the need, objective, super elevation, the different methods for the determination of the length of the transition karo, and also we have discussed the ideal transition karo या the setting out methods for the transition karo, and also we discussed the characteristics of the transition karo. Now, how practically you will set out a transition करो along with the circular करो. ठीक है. अगर आपके पास एक सर्कुलर करो है ना, और उसकी जो पैरामीटर्स है, if you want to make it more gradual, smooth and comfortable, so then you will have to design a transition करो along with it. So what will be the practical procedure? कौन सा डेटा गिवन होगा, फिर आपने कौन सा डेटा किस तरह कैलकुलेट करना है, और फिर आपने प्रैक्टिकली किस तरह ट्रांजिशन करो को सेट आउट करना है. ठीक है. तो अगेन देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें. सी, ग्राउंड पे आपके पास क्या होगा? एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होगा ना, जिस लाइन पे आप आ रहे हैं. सपोज ए पॉइंट से आपने स्टार्ट लिया हुआ है, इसका चेंज क्या होगा? 0 होगा. ठीक है. बी पॉइंट तक आप आ गए, यहां से आपने डायरेक्शन चेंज करना है, तो इस पॉइंट का चेंज आपके पास गिवन होना चाहिए.
चेंज अप पॉइंट बी, जहां से आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सपोज यू विल बी गोइंग इन दिस बी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, तो एक आपके पास चेंज अप बी होना चाहिए, दूसरा क्या है, आपके पास ये डेल्टा होना चाहिए कि कितने एंगल पे आप डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, सो इससे आपके पास डेल्टा आ जाएगा। नाउ इस डायरेक्शनल चेंज को ग्रेजुअल बनाने के लिए कितने रेडियस का सर्कुलर करो आप डिजाइन करना चाहते हैं, तो आर को सेलेक्ट कर लें। रिमेंबर ये जो है ये समरी है, ये 2-3 लेक्चर का। ठीक है, इसको प्रॉपरली अटेंटिवली देखें। आपके पास ग्राउंड पे एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, फिर यहां से आपका डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, तो बी जो है दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। सो यहां पे आपके पास ये डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा कि कितने एंगल पे आपने डायरेक्शन चेंज किया हुआ है, और बी जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, तो आपके पास बी का चेंज आ जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा। ऑल्सो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द स्पेस, बेस्ड ऑन द शार्पनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ द करो, आप आर को सेलेक्ट कर ले कि कितनी रेडियस का आप सर्कुलर करो डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब देखें जब आप आर सेलेक्ट कर लेंगे ना, सो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इस रेडियस वाले करो पे अलाउएबल वेलोसिटी कितनी होगी। वी हैव डिस्कस्ड दिस इक्वेशन व्हिच इज इक्वल टू 2.452 आर। तो अगर इतने रेडियस का सर्कुलर करो आप डिजाइन करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर अलाउएबल वेलोसिटी इतनी होगी। अगर अलाउएबल वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, तो अब आप एल कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके साथ अगर आप ट्रांजिशन करो डिजाइन करना चाहते हैं टू मेक मोर ग्रेजुअल, मोर स्मूथ एंड कंफर्टेबल द चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन इनटू सर्कुलर करो, और फ्रॉम सर्कुलर करो टू स्ट्रेट लाइन, अगर इसके साथ आप ट्रांजिशन करो डिजाइन करना चाहते हैं तो उसका लेंथ कितना होगा। तो उसके लिए आप या रेट ऑफ सुपर एलिवेशन सेलेक्ट कर लें, या रेट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन सेलेक्ट कर लें, या आर्बिट्ररी मेथड से कर लें। ठीक है, इन ए और अल्फा जो है दैट इज द रेट ऑफ द रेडियल एक्सेलरेशन, ये रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है जो प्रीवियस लेक्चर 4 में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इसमें v इन्वॉल्व है, तो r और v आपके पास आ जाए, सो यू कैन कैलकुलेट द लेंथ। सो दीज फोर आर द बेसिक पैरामीटर: चेंज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, डिफ्लेक्शन एंगल, रेडियस ऑफ सर्कुलर करो, एंड लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो। ये 4 पैरामीटर्स आपके पास आ जाएंगे, ये डेटा आपके पास फील्ड से आ जाएगा। ठीक है, सो देखें, डिफ्लेक्शन एंगल, रेडियस सर्कुलर करो, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो, एंड चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये 4 पैरामीटर्स जो है ये आपके पास गिवन होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने डेटा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, शिफ्ट को कैलकुलेट कर लें। शिफ्ट क्या है, that is equal to L square divided by 24R, and as we have discussed, delta R, L और चेंज ऑफ B, ये 4 पैरामीटर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। सो यू कैन कैलकुलेट द शिफ्ट कि अगर सर्कुलर करो के साथ हम ट्रांजिशन करो डिजाइन करेंगे तो उसको हमने कितना शिफ्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद क्या कर लें, टेंजेंट लेंथ को कैलकुलेट कर लें, एंड द टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू, टेंजेंट लेंथ जो है ये बराबर है r प्लस एस टेंजेंट डेल्टा बाई 2, ठीक है, प्लस एल बाई 2। सो एल भी गिवन है, डेल्टा भी गिवन है, आर भी गिवन है, एस आपने कैलकुलेट किया हुआ है। सो यू विल कैलकुलेट दी, या यू विल फाइंड आउट दी टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ आपके पास आ जाएगा। तो आप देखें, जितना लेंथ आपके पास आ जाए, तो बी से इस लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे बैकवर्ड डायरेक्शन पे आ जाए, और यहां पे एक पॉइंट लगाए। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये टी पॉइंट हो जाएगा।
सो यू हैव लोकेटेड द फर्स्ट पॉइंट, यहां से ट्रांजिशन करो स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका चेनेज क्या होगा? सो चेनेज अब बी गिवन है, बी की चेनेज से टेंजेंट लेंथ सब्ट्रैक्ट कर लें तो टी पॉइंट का चेनेज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, पाई वन को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई वन इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई 2r, बिकॉज ये फिर आगे कैलकुलेशन में इन्वॉल्व है। सो एल गिवन है, आर गिवन है, तो स्पाइरल एंगल आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, बट रिमेंबर ये रेडियन में आएगा। अगर आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करने तो पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, नाउ also you can calculate the length of the circular curve, ठीक है, which we have discussed that length of the circular curve is equal to pi r delta minus 2 pi 1 divided by 180। तो डेल्टा और आर गिवन है, पाई हमने कैलकुलेट किया। यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सर्कुलर करो। ठीक है, अच्छा, अब देखिए चेनेज फाइंड कर लें बिगिनिंग ऑफ द करो, बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन करो। तो ये किस तरह आएगा? एज वी हैव डिस्कस्ड कि द चेनेज ऑफ बी पॉइंट माइनस द टेंजेंट लेंथ, सो यू विल गेट द चेनेज ऑफ टी, या चेनेज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन करो। इसके बाद क्या कर लें? चेनेज ऑफ द जंक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लें। तो देखें टी के साथ लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो 8 कर लेना, जितना लेंथ है ट्रांजिशन करो का, इसको चेनेज ऑफ टी के साथ 8 कर लें। सो यू विल गेट द चेनेज ऑफ द जंक्शन पॉइंट, जहां से सर्कुलर करो स्टार्ट हो रहा है ना, उस पॉइंट का चेनेज आपके पास आ जाएगा। अब चेनेज ऑफ ई प्लस लेंथ ऑफ द सर्कुलर करो, ये जो है लेंथ ऑफ द सर्कुलर करो, इसको ई के चेनेज के साथ 8 कर लें तो दूसरी जंक्शन पॉइंट का चेनेज आ जाएगा, ई डैश का चेनेज आ जाएगा। ठीक है, फिर ई डैश के साथ लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो 8 कर लें तो लास्ट टेंजेंट पॉइंट का चेनेज आ जाएगा, मीन टी डैश का चेनेज आ जाएगा। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट द चेनेज ऑफ द लास्ट पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन करो या लास्ट पॉइंट ऑफ द कंबाइन करो बाय एडिंग द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो टू द चेनेज ऑफ ई डैश। ठीक है, अच्छा, जब ये आपके पास हो आ जाए, सारा डेटा आपने कैलकुलेट किया, अब जो है आप कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर ले, एक्स और वाई। अगर आप क्यूबिक पैराबोला डिजाइन करना चाहते हैं ना, तो अलोंग द टेंजेंट लेंथ, देखिए आपने तो जस्ट चेनेजेस कैलकुलेट किए, अब प्रैक्टिकली फील्ड में आपके पास ये लाइंस तो नहीं है, इनको आप किस तरह लोकेट करेंगे? तो आप अपने लिए x की वैल्यू एज्यूम करते जाएं कि सपोज अगर x 2 मीटर है, y कितना होगा, x 4 मीटर है, y कितना होगा, x 6 मीटर है, y कितना होगा। सो इस तरह डिफरेंट वैल्यूज ले लें अप टू x विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो, और y जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई 6r लास्ट में। ठीक है, तो फिर t से इतने x डिस्टेंस पे जाएं और इतने y पे आ जाए, फिर दूसरा y, तीसरा y, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लास्ट में आपके पास ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ना, टेंजेंट से आपने इतना आना है। तो इसको अगर आप पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लेंगे फील्ड में, या ये जो पॉइंट्स है दीज विल रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन करो ऑन द ग्राउंड। तो ई तक आप आ जाएंगे ना। अब ई से आगे आपने क्या करना है, सिंपल सर्कुलर करो को रेंज आउट करना है। तो इसकी किसी भी मेथड को आप यूज कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो 7 मेथड डिस्कस किया है, 3 एंगुलर और 4 लीनियर, तो उसमें से किसी भी मेथड से ये जो सिंपल सर्कुलर करो है उसको रेंज आउट कर लें। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट ब्रांच है ट्रांजिशन करो का, अगेन उसके लिए यही वैल्यूज जो आपने लिए है ना, टी डैश से एक्स पे आ जाए और उसका y1 ले लें, फिर x2 पे y2 ले लें, x3 पे y3 ले लें, x4 पे y4 ले लें, एंड सो ऑन। आखिर में लास्ट x जो है उस पे आपके पास ई डैश तक आ जाएगा। इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर लेंगे, सो यू विल गेट द नेक्स्ट ट्रांजिशन करो।
तो आपके पास जो है कंपोजिट करो आ जाएगा, कंबाइंड करो आ जाएगा. दिस इज द कंप्लीट डिजाइनिंग प्रोसीजर्स फॉर द कंपोजिट करो. एंड वन थिंग, पेग इंटरवल जो होते हैं, मीन अगर ट्रांजिशन करो में आप पेग लगाते हैं तो 10 मीटर या 15 मीटर पे लेते हैं. मीन नॉर्मली जो सर्कुलर करो पे होते हैं हम 30 मीटर लेते हैं ना, लेकिन ट्रांजिशन करो क्या है, हर एक पॉइंट पे रेडियस चेंज होता है. तो जितने पॉइंट ज्यादा होंगे और नजदीक होंगे उतना करो जो है वो एक्यूरेट होगा. सो रिकमेंडेड पेग इंटरवल फॉर द ट्रांजिशन करो इज 10 मीटर और 15 मीटर. ठीक है, इज इट क्लियर जी? कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं. क्लियर है? यस सर. अच्छा, हाँ देखिए, एक न्यूमेरिकल है. ये जो प्रीवियस स्लाइड है, ये एक स्लाइड जो है ये कंप्लीट समरी है हमारी प्रीवियस लेक्चर 4 में जो हमने ट्रांजिशन करो डिस्कस किया है, और ये जो लेक्चर 5 में हमारे जो ट्रांजिशन करो जो डिस्कस किए. ठीक है, तो अब देखिए इस एग्जांपल को, वी हैव गिवन दी डिफ्लेक्शन एंगल. ठीक है, देखिए आपके पास जो बेसिक पैरामीटर है वो 4 हैं. चेंज ऑफ पॉइंट बी, डिफ्लेक्शन एंगल, रेडियस ऑफ सर्कुलर करो एंड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो. ये बेसिक पैरामीटर है. या तो ये आपके पास प्रैक्टिकली फील्ड से गिवन होंगे, ऑब्जर्व होंगे, या इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होंगे, देन यू कैन कैलकुलेट दिस पैरामीटर. सो नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन. ये तो क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू गिवन है. चेंज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज गिवन. ठीक है, ये दोनों जो है ये क्लियरली गिवन है. प्रैक्टिकली फ्रॉम द फील्ड दीज आर द मेजर्ड वैल्यूज. Now the radius and length is not given, but some specifications are given about these parameters. Like suppose if you are going to design a circular curve, then the maximum allowable speed will be 60 miles per hour. And the centrifugal ratio, which is the ratio between the centrifugal force and weight of the vehicle, that is 1/4. Okay, and the maximum रेट ऑफ एक्सेलरेशन, मीन जो ट्रांजिशन करो आप डिजाइन कर रहे हैं ना, तो उसकी हर एक पॉइंट का रेडियस चेंज हो रहा है ना. रेडियस चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, मीन रेडियल एक्सेलरेशन भी चेंज होगा. कितना चेंज होना चाहिए? 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन में चेंज आना चाहिए 1 सेकंड टाइम में. मीन 1 सेकंड में रेडियल एक्सेलरेशन में 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर चेंजेस आना चाहिए. सो दैट के जंक्शन पॉइंट पे आपके पास रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन हो v स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर. इतना एक्सेलरेशन हमें इस पॉइंट पे चाहिए. तो t पॉइंट पे कितना होगा? 0 होगा. इस पॉइंट पे कितना चाहिए? v स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर. तो हमने पर सेकेंड कितना एक्सेलरेशन अचीव करना है? 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो अब देखें, चेंज ऑफ बी एंड डेल्टा इज गिवन. अब आर और एल जो है हमने इन इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, तो देखें रेडियस और लेंथ कैलकुलेट करना है. तो पहले ये स्पीड है ना, ये हमारे पास किसके बराबर होगा? मीन अगर इसको आप कन्वर्ट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 88 फीट पर सेकेंड. ठीक है, ये माइल्स पर आवर में है तो फीट पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें. सिमिलरली ये सेंट्रीफ्यूगल रेशो जो है P/W, ये किसके बराबर है? 1/4 के. और ये हमारे पास किसके बराबर होता है? v स्क्वायर डिवाइड बाय जी आर के बराबर होता है. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाई आर के बराबर है मेरे ख्याल में. ये v स्क्वायर बाई जी आर जो है ये सेंट्रीफ्यूगल रेशो है. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या है? v स्क्वायर बाई आर, और v स्क्वायर बाई जी आर जो है ये सेंट्रीफ्यूगल रेशो है. ठीक है, तो आप देखें
ये 1/4 इज इक्वल टू 88 फीट पर सेकंड स्क्वायर, 88 पर फीट पर सेकंड, ये वेलोसिटी हो गई ना, गिवन है। और जी क्या है, 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुई है। और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट आर। क्लियर? अच्छा, Yes, देख, sir. आपके पास आर जो है ये आर आ जाएगा, तकरीबन 962 फीट आ जाएगा। अब दूसरा हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो हमने कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट एल इज इक्वल टू वी क्यूब डिवाइड बाय अल्फा आर। तो एलाइबल वेलोसिटी जो है वो 88 फीट पर सेकंड है। अल्फा जो है दैट इज रेट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, वो गिवन है हमें 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, तो इससे 1 फीट पर सेकंड आ जाएगा। सो ये हो गया। रेडियस हमने कैलकुलेट किया है 962 है। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो, कि कितने लेंथ का ट्रांजिशन करो आपने डिजाइन करना होगा। सो दैट इज इक्वल टू 708.4 फीट। तो अब बेसिक डेटा जो है हमारे पास आ गया, डेल्टा बी आ गया, वो गिवन है, चेनेज ऑफ बी भी गिवन है, हमने आर भी कैलकुलेट कर दी, एल भी हमने कैलकुलेट कर दी। ठीक है, अब जो है टेंजेंट लेंथ को कैलकुलेट कर लें। ये इक्वेशन है, आर गिवन है, डेल्टा गिवन है पहले, अब एस को कैलकुलेट कर लें। तो एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 24 आर। ठीक है, तो एल आर इज गिवन, यू विल गेट 21.7 फीट। मीन अगर सर्कुलर करो के साथ आपने ट्रांजिशन करो डिजाइन करना है, तो सर्कुलर करो विल बी शिफ्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 22 फीट। तो अब ये वैल्यूज यहां पे पुट कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा कि बी से टी तक ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सर्कुलर करो बाय दिस इक्वेशन, पाई आर डेल्टा माइनस 2 पाई 1 डिवाइड बाय 180। तो पहले पाई 1 कैलकुलेट कर लें। ठीक है, पाई 1 इज इक्वल टू एल बाई 2 आर है ना, ये रेडियन में होता है, तो इसको 180 बाई पाई के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये जो पाई 1 है आपके पास आ जाएगा 21 डिग्री 5 मिनट 45.69 सेकेंड आ जाएगा। नाउ लेंथ ऑफ दी सर्कुलर करो क्या होते हैं, पाई आर डेल्टा माइनस 2 पाई 1 डिवाइड बाई 180 डिग्री। तो वैल्यूज पुट कर ले, सो यू विल गेट दी लेंथ ऑफ द सर्कुलर करो। अब देखें, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो गिवन है, लेंथ ऑफ सर्कुलर करो भी आ गया, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो भी आ गया। सो अब चेंजेस फाइंड कर लें। टी पॉइंट का चेंज क्या होगा, चेंज ऑफ पॉइंट बी माइनस टेंजेंट लेंथ, ये जो टेंजेंट लेंथ है, ठीक है, दैट वी हैव कैलकुलेटेड 927। इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपके पास ई का चेंज आ जाएगा। इसके साथ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो 8 कर लें, तो जंक्शन पॉइंट का चेंज आ जाएगा। सो चेंज ऑफ टी प्लस लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो, सो दिस इज द चेंज ऑफ फर्स्ट जंक्शन पॉइंट। अब ई के साथ लेंथ ऑफ द सर्कुलर करो 8 कर लें, which we have calculated, so you will get the change of the e dash point या end of the circular करो। अब इसके साथ लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो 8 कर लें, तो लास्ट पॉइंट जो है टेंजेंट पॉइंट कंपोजिट करो का उसका चेंज आ जाएगा आपके पास। मीन ई डैश के साथ लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो 8 कर ले, बिकॉज ये भी ट्रांजिशन करो है ना इस साइड पे, सो यू विल गेट द चेंज ऑफ द लास्ट पॉइंट। इज इट क्लियर? जी, Yes, sir. so this was all about the transition karo. So in this week we have discussed the ideal transition karo, yeah, we have discussed the different equations for the
setting out of the transition करो. So when we have the cubic parabola या root transition या easement transition करो. And जो दूसरा था हमारे पास, that was the clothoidal transition or true transition. And also we have discussed the deflection angles. Okay. And we have discussed the different characteristics and the complete designing procedures of the transition curve. Okay.